Hello students, today we are going to study our chapter number 5 from our first flight book, and the name of the chapter is The 100 Races. So the name 100 Races, it continues for the two chapters, chapter number 5 and chapter number 6. So half of the story is related in chapter number 5 and the other half is told in chapter number 6. So before we start reading our chapter, we must read some introductory lines, and these are here. How do we judge the people around us? By their money, wealth, and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? तो here we are asked कि हम किसी भी लोगों को किस तरह से जज करते हैं, उनके पास जो पैसा है उसके बिहाफ पे, और या फिर उनके पास जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके बिहाफ पे, और या फिर उनकी कुछ और वैल्यूज़ हैं जो उनकी इंटरनल वैल्यूज़, उनके बिहेवियर बिहेव का एक जो पार्ट है, क्या हम उसके बिहाफ पे लोगों को जज करते हैं कि कोई इंसान कैसा है. So this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. So here in this story we will study about a girl who belongs to a poor family, and how does her classmates assess her, or how do they judge her. So here Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. So here the girl is talked about. She is Wanda Petronsky. Her name is Wanda Petronsky. She goes to a school with American children in an American town. And these other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? Now this girl, that Polish girl named Wanda Petronsky, she is different in so many ways from the American students or American children, like maybe as per her name and her dressing sense and her looks and so on. So there are many reasons that American children differentiate with her. So let's see. Read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. So here the Polish American community in the United States. Now here Polish American community. Polish American community is that community like that belongs the people who belonged to Poland, and at some time they immigrated to America. These are known as Polish American community. So a lot many number of people came to America to reside there permanently, and they were originally belonging to Poland, that is a Central European country. So whenever they came to America, they were known as Polish American community, and they were also known as Poles. So let's start. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to US. Here it is told us that the first Polish immigrants, जो सबसे पहले जो पोलैंड से इमिग्रेंट्स आए, मतलब जो आके परमानेंटली सेट हुए अमेरिका में, दे अराइव्ड इन 1608. बट जो बहुत ज़्यादा नंबर में ये लोग आए थे फ्रॉम पोलैंड, they came in early 20th century when more than 1 million Poles migrated to US. जब वहाँ से करीब 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन, करीब 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो थे पोलैंड के लोग यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट किए. अब माइग्रेशन मीन्स अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना सेटल होने के लिए, या जैसे भी इमिग्रेंट्स जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आ गए हैं, सेट हो गए हैं, लाइक अमेरिकन्स के लिए वो इमिग्रेंट्स हैं, और एक जगह छोड़ के हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं जिसने माइग्रेट करना, दैट इज़ नॉन एज माइग्रेशन, to go from one place to another, and to set at one place, and then in that area or that country they will be known as immigrants. The Polish state didn't exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity.
सो एट दैट टाइम जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल पोलैंड से वहाँ आए अमेरिका में, तो वहाँ पे पहले तो सब इन स्टार्टिंग दैट पॉलिश स्टेट डिडंट एग्जिस्ट। पहले से ही उनकी स्टेट वहाँ पे अलग से नहीं बनी हुई थी। सो वहाँ ये जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ पे आए और तब पोलिश स्टेट ना होने के कारण वहाँ पे उनको लोगों को किस तरह से जाना जाता था, बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन। बाय देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से वो आए थे उस हिसाब से उनको जाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स, कि रशिया से आने वाले जो लोग थे उनको रशियन पोल्स, जर्मनी से आए थे जो उनको जर्मन पोल्स, और जो ऑस्ट्रिया से आए थे उन्हें ऑस्ट्रियन पोल्स बोला जाता था। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So सबसे ज़्यादा नोटेबल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी कौन सी जानी जाती है? दैट इज़ शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। शिकागो और उसके जो सबर्ब्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर से आए हैं और इमिग्रेंट कर गए हैं, सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो अमेरिका के हैं वहाँ पे रह रहे हैं। So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. So इसलिए जो शिकागो है उसको second largest Polish city भी बोला जाता है in world। मतलब सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे आने वाली जो सबसे बड़ी सिटी है पोलैंड के लोगों की, या फिर जर्मन पोल्स या रशियन पोल्स और ज्यूज जो भी वहाँ पे आके रह रहे हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इज़ नॉन एज शिकागो। तो नेक्स्ट ओनली टू वार्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और जो फर्स्ट जो लार्जेस्ट सिटी है पॉलिश सिटी दैट इज़ वार्सा। नेक्स्ट टू ओनली टू वार्सा मीन्स सबसे पहली जो सिटी है लार्जेस्ट दैट इज़ वार्सा, जहाँ पे पॉलिश लोग रहते हैं, और जो वार्सा है वो कैपिटल है पोलैंड की। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews। और जो पॉलिश अमेरिकन्स जो इमिग्रेंट्स थे वहाँ पे पोलैंड से आए हुए या फिर रशिया से या जर्मन से आए हुए, तो उनको किस तरह उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था यूएस में बहुत बार। एंड और उनको किस तरह से कॉल किया जाता था कि लाइक दीज आर द आयरिश पीपल, दीज आर इटालियंस एंड दीज आर जूस। उनको अमेरिकन्स ना बोलते हुए उनको आयरिश, इटालियंस और जूस बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू यूएस 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. So according to US 2000 census की अगर बात की जाए तो 6,67,414 अमेरिकन ऐसे थे जिनको 5 साल हो गए थे वहाँ पे अमेरिका में रहते हुए। सो दैट्स वाई दे आर नॉन एज अमेरिकन्स। सो 5 साल से ज़्यादा से वहाँ रह रहे थे एंड रिपोर्टेड पॉलिश, और जिनको पॉलिश बोला जाता था किस बिहाफ पे कि वो अपने घर में जो लैंग्वेज बोलते थे इट वाज अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश से अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते थे लाइक इटालियन, रशियन और जर्मन। सो दे वर रिपोर्टेड एज पॉलिश, जिनको 5 साल हो गए थे वहाँ पे अमेरिका में रहते हुए, और एंड इट वाज 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। सॉरी। सो ये जो थी 1.4% ऑफ पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, ये 1.4% थे उन लोगों का जो इंग्लिश बोलते थे, जो अमेरिका में रह रहे थे और इंग्लिश बोलते थे। उनका 1.4% ऐसे लोग थे जो 5 साल से अमेरिका में रह रहे थे, बट दे वर ऑल्सो नॉन टू अदर लैंग्वेजेस एंड दे यूज टू स्पीक अदर लैंग्वेजेस एट होम। And also this was the in percentage it was 0.25% of US population। और ये जो 1.4% लोग थे जो इंग्लिश बोलने वालों का 1.4% जो पीपल थे, और ये टोटल नंबर कितने बनते थे 0.25% ऑफ यूएस पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो ये 0.25% थी यूएस की। So here our chapter starts properly.
Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Now, as we have learned in the introductory lines कि जो एक वांडा पेट्रॉन्स्की है, एक गर्ल है जिसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, दैट इज डिस्क्रिमिनेटेड इन अमंग हर क्लासमेट्स. सो हियर दैट पेट्रॉन्स्की इज टॉक्ड अबाउट कि आज मंडे को वांडा पेट्रॉन्स्की जो कि अपनी सीट पे नहीं थी एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, जो कि इवन पैगी और मेडेलाइन जिन्होंने उसके साथ फन स्टार्ट किया था, दे यूज टू मेक फन ऑफ हर, इवन उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को क्लास में नोट नहीं किया. यूजली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. और यूजली वांडा कहाँ बैठती थी? लास्ट सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो ऑफ द रूम 13. रूम 13 में उनकी क्लास जो थी वो थी, और जो रूम 13 में लास्ट रो में लास्ट सीट के साथ वाली सीट पे यूजली वांडा बैठा करती थी. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिडंट मेक गुड मार्क्स सैट. अब वो कहाँ पे बैठती थी? अब लास्ट सीट में कौन से लोग बैठते थे? वो बॉयज जो रफ काइंड ऑफ बॉयज थे and who didn't score good marks at all, and the corner of the room where there was most scuffling ऑफ फीट. और उस जगह पे वो वांडा बैठा करती थी जहाँ पे ये कॉर्नर था रूम का एक, क्योंकि लास्ट सीट थी, लास्ट रो थी, तो ये कॉर्नर था उस रूम का, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कफलिंग साउंड आती थी. स्कफलिंग साउंड होती है जब पैरों को ड्रैग किया जाता है, घसीटा जाता है ज़मीन के साथ, तो जो साउंड आती है दैट इज़ नॉन एज स्कफलिंग साउंड. एंड मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड. और जब भी कोई हंसने वाली या फनी बात होती थी क्लास में, तो सबसे ज़्यादा शोर जो है उसी जगह से, उसी कॉर्नर से आता था, क्योंकि वहाँ पे वो नॉटी काइंड ऑफ बॉयज़ वहाँ पे बैठा करते थे और जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. और सबसे ज़्यादा डर्ट और मड भी उसी जगह पे, उसी कॉर्नर पे होती थी रूम के. वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. अब ऐसा नहीं था कि वांडा अच्छी नहीं थी एंड शी वॉज ऑल्सो रफ एंड नॉइजी काइंड ऑफ गर्ल, तो इसलिए ऐसे वहाँ पे बैठती थी. रादर ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल. और इसके अपोजिट क्या था? वो तो बहुत ही क्वाइट थी और कभी किसी ने, शायद ही किसी ने उसके मुंह से कुछ सुना हुआ. रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल मतलब वो बहुत ही कम बोला करती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और कभी भी उसको किसी ने ऊंची से हंसते हुए तो सुना ही नहीं था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन अ क्रिकेट सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. और अगर कोई बात होती भी किसी के साथ उसकी और कोई हंसने वाली बात होती, या उसको कोई कभी कुछ ऐसे फन किया जाता, या फिर उसके साथ उसको कुछ पूछा जाता, तो सिर्फ वो एक क्रिकेट काइंड ऑफ स्माइल, एक टेढ़ी सी स्माइल देते ना, जैसे स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्माइल, बस वैसा ही थोड़ा सा हंस देती थी. अदरवाइज she never used to speak aloud. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब किसी को exactly ये तो नहीं पता था कि वांडा वहाँ पे उस लास्ट कॉर्नर पे, लास्ट सीट पे क्यों बैठा करती थी, अनलेस और सिर्फ यही रीज़न दिखाई देता था. अगर सोचा जाए कि शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट, और बॉगिन्स हाइट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, और यहाँ से वो आती थी वांडा, एंड जो आते हुए रास्ते में जो उसके जो पैर होते थे वो बहुत ज़्यादा मडी हो जाते थे, शूज़ जो मड से भर जाते थे. सो हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर ड्राई मड लगी होती थी. And but no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. बट एक बार जब वो वहाँ पे बैठ जाती थी, तो उसके बाद कोई भी यानी कुछ नहीं सोचता था कि वो वहाँ पे क्यों बैठी. तो मेन रीज़न जो ये देखा जा रहा है कि वो यही हो सकता है कि शायद उसके जो पैर है वो मडी होते थे, शूज़ मडी होते थे, और ज़्यादा मड लगने की वजह से शायद उसे शर्म आती थी कि उसके जो शूज़ हैं वो गंदे हैं. दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू सिट एट द लास्ट कॉर्नर ऑफ द रूम. The time when they thought about Wanda was outside of the school hours, at noontime when they were coming back to school, or in morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. अब क्या टाइम होता था जब सारी गर्ल्स जो हैं या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करते थे, कब उसको नोटिस किया जाता था? एंड दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज ओनली आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स. मतलब स्कूल टाइम पे, क्लास टाइम पे तो
कोई भी उसे उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता था. इट वॉज यूजली आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स एंड मे बी एट द नून टाइम, जब नून टाइम में, आफ्टरनून में छुट्टी हो जाती थी स्कूल से, और जब वो स्कूल से घर वापस जा रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर स्कूल शुरू होने से पहले, जब रास्ते में जो कुछ गर्ल्स जो थी उसका रास्ते में उनके साथ जो रास्ता था मैच करता था हाफ वे, तो वहाँ पे शायद कहीं उसके रिलेटेड कोई बात होती थी. व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग और लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड. और मॉर्निंग टाइम की अगर बात की जाए तो तब उसको याद किया जाता था, या जब 2 या 3 गर्ल्स या 2 या 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे बातें करते हुए हंसते हुए अपने स्कूल की तरफ बढ़ते होते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. और जो रीज़न था उसको मिस करने का या उसको पेट्रॉन्स्की को नोट करने का, वो सिर्फ यही था कि जो बच्चे थे क्लास के वो उसके साथ फन करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. दिस वॉज द ओनली रीज़न दैट दे वेटेड फॉर वांडा ऑन देयर वे टू स्कूल. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल ईदर. और नेक्स्ट ट्यूसडे, अब पहले हमने मंडे की बात की, तो अब नेक्स्ट जो था ट्यूसडे, तब भी वांडा स्कूल में नहीं थी ईदर. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. और फिर ट्यूसडे को भी किसी ने उसकी एब्सेंस को नोट नहीं किया कि वांडा जो पेट्रॉन्स्की है वो स्कूल नहीं आई. बट ऑन वेंसडे Peggy and Maddie, who sat down front with the other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. बट अगेन वेंसडे, मंडे को नहीं नोटिस की गई उसकी एब्सेंस, ट्यूसडे नहीं की गई, एंड नाउ इट इज़ ऑन वेडनेसडे. सो वेंसडे पैगी एंड मैडी, जो कि फ्रंट पे बैठती थी, फ्रंट सीट्स पे बाकी बच्चों के साथ, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते थे, एंड ऑल्सो जो उनका घर से आने का रास्ता था दैट वाज नॉट अ मडी ट्रैक, और एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, who did notice that Wanda was not there. अब उन दोनों ने, पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वांडा आज भी स्कूल नहीं आई. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. और जो पैगी है बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी स्कूल की. शी वॉज प्रिटी एंड शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स. अब वो क्यों नोटिसेबल थी? बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी. वो उसकी लुक जो थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्मार्ट थी, एंड ऑल्सो शी वॉज हैविंग लॉट मेनी गुड क्लोथ्स. बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स थे उसके पास, ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके कर्ली हेयर थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. और जो मैडी थी वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी पैगी की. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब क्या रीज़न था पैगी और मैडी ने अगेन वेंसडे को भी वांडा की एब्सेंस को नोट किया? वो दिस वाज द ओनली रीज़न वाज दैट कि वो शायद वांडा की वजह से ये दोनों लेट हो गई थी. अब वो क्यों लेट हुई थी? They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just had not come. अब मे बी ऑन द वे, जहाँ पे वो रास्ते में उनका मैच करता था, उनका ट्रैक मैच करता था, तो वहाँ पे वो खड़ी इनकी वेट कर रही थी. ये दोनों पैगी और मैडी जो है वांडा की वेट कर रही थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके साथ कुछ फन करने के लिए. बट शी हैड नॉट कम. पर फिर भी वो वहाँ पे नहीं आई, तो दैट मीन्स उनसे उसकी वेट करते करते ये दोनों लेट हो गई थी स्कूल से. दैट्स व्हाई दे वर नोटिसिंग द एब्सेंस ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर. अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वो रास्ते में उसकी वेट किया करती थी, उसके साथ मजाक करने के लिए, उसके साथ फन करने के लिए. दैट्स व्हाई दे गॉट लेट जब वांडा नहीं आई तो. वांडा पेट्रॉन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 didn't have names like that. Wanda Petronsky. अब ये कोई फनी सा नेम लग रहा है. Most of the children in the room 13 didn't have the names like that. और बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे थे जिनके रूम नंबर 13, दैट मीन्स उनकी क्लासरूम में कुछ भी ऐसा फनी नेम नहीं था. दे हैड नेम्स इजी टू से, और उनके इजी से नाम थे लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. कुछ इस तरह के नेम्स थे बच्चों के, अमेरिकन स्टूडेंट्स के. सो देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस. अब एक ही बच्चा ऐसा था जिसका नेम जो था थोड़ा सा फनी था, लाइक बाउंस, विली बाउंस. उसका पूरा नेम था विली बाउंस, एंड द पीपल थॉट दैट वाज फनी. और बाकी के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि ये नेम थोड़ा सा फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वाज. पर इतना फनी भी नहीं जितना कि वांडा पेट्रॉन्स्की. दैट मीन्स इट वाज अ लिटिल बिट लेंथी नेम. और पेट्रॉन्स्की वहाँ पे अमेरिका में थोड़ा सा अलग सा नेम था, ऑब्वियसली क्योंकि उसका जो कंट्री थी वांडा पेट्रॉन्स्की की, शी हैड कम फ्रॉम पोलैंड, तो उसका वहाँ पे जो कल्चर के अकॉर्डिंग जो नेम्स होते हैं वो अलग थे अमेरिकन नेम्स से. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. अब वांडा जो थी
अब अमेरिकन गर्ल नहीं थी, अमेरिकन बॉर्न गर्ल नहीं थी, तो उसका नेम भी अलग था, उसकी नेचर भी थोड़ी अलग थी एंड इसीलिए वहाँ पे उसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं थी। शी केम स्कूल अलॉन एंड वेंट होम अलॉन। वो स्कूल भी अकेली आती थी और घर भी अकेली ही जाती थी। शी वॉज नॉट हैविंग एनी गुड फ्रेंड। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। और हमेशा वो एक ही ड्रेस पहना करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि फेडेड ब्लू कलर, जो ब्लू कलर फेडेड मीन्स वर्न आउट, की जो पुरानी हो जाती है, तो पुरानी होने से कुछ कलर जो है कपड़े का डल हो जाता है, और सिर्फ वही डल ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी दैट डिडंट हैंग राइट, और जो उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं थी, दैट मीन्स खुली खुली थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ये साफ सुथरी तो होती थी, इट वॉज वॉश्ड प्रॉपरली, बट ऐसा लगता था कि इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, कि इसको कभी भी अच्छे से प्रेस नहीं किया गया। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर। अब उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं थी, बट फिर भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं उसके साथ बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। अब वो बात क्यों करती थी, जब फ्रेंड्स ही नहीं थी तो उसके साथ बातें कैसे होती थी इन गर्ल्स की। सो समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेस हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। और कई बार क्या होता था रिसेस टाइम पे, या वैसे भी अर्ली मॉर्निंग या आफ्टर स्कूल, जैसे जिस टाइम भी बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते थे, लाइक अपने स्कूल यार्ड में वो अकेली खड़ी होती थी, तो जब छोटी गर्ल्स को देख रही होती थी कि वो हॉप स्कॉच खेल रही हैं। हॉप स्कॉच एक गेम है जिसमें स्क्वायर बॉक्सेस बनाए जाते हैं ज़मीन पे, और उसके ऊपर नंबर्स लिख के उसके ऊपर जंप किया जाता है हर एक बॉक्स में, या फिर कुछ एक बॉक्स छोड़ के जंप किया जाता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गेम दैट इज़ प्लेड बाय गर्ल्स और बॉयज़, मतलब जो बच्चों के खेलने की गेम है, इसको हम स्टेपू भी बोलते हैं। तो कई बार वो खड़ी वहाँ पे छोटे बच्चों को हॉप स्कॉच खेलते हुए देख रही होती थी स्कूल यार्ड में, तो बहुत सारी गर्ल्स उसके आसपास आके खड़ी हो जाती थी। सराउंडेड हर मतलब उसको घेर लेती थी, और क्या कहती थी, वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब पैगी उसको आके बोलती थी, पैगी जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल की, बहुत स्मार्ट है, बहुत प्रिटी है एंड बहुत रिच भी है। सो वो उसको बहुत ही प्यार से आके कर्टियस मैनर में, बहुत ही सिविल बिहेवियर में उसके साथ बात करती हुई, उसको बुलाती हुई कहती है, वांडा। अब इस तरह से बात करती है जैसे वो मिस मेजन के साथ बात करती है, बहुत कर्टियस मैनर के साथ, बहुत अच्छे एटिकेट्स के साथ। Wanda should say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? अब यहाँ पे क्या है, नज क्या होता है, किसी को जानबूझ के कि अब यहाँ नज मीन्स अ जेंटल पुश। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ, पैगी जो है वो यहाँ पे मजाक उड़ाने के मोटिव के साथ यहाँ पे आई है वांडा के पास। उसको बहुत ही कर्टियस वे से बोलती है, वांडा जो तो तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है हैंग की हुई तुम्हारी क्लोजेट में। क्लोजेट मीन्स कबर्ड और अलमीरा, कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं। और साइड बाय साइड जो पैगी है वो अपनी किसी जो फ्रेंड है, 2-3 फ्रेंड्स हैं जैसे वहाँ पे, तो अपनी किसी फ्रेंड को, चाहे वो मैडी या किसी और को, थोड़ा सा अपने एक जेंटल पुश देती है अपनी शोल्डर के साथ, अपनी साइड ऑफ द बॉडी के साथ, कि और दैट मीन्स ये शो हो रहा है कि वो उसका मजाक उड़ाने के मोटिव से, वांडा के मजाक उड़ाने के मोटिव से वहाँ आई है, और बहुत ही प्यार से उसको पूछती है कि तुम्हारे पास, तुम्हारी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं। वो ऐसा क्यों पूछ रही है, क्योंकि वांडा यूज्ड टू वेयर ओनली सिंगल ड्रेस दैट वाज ऑफ ब्लू कलर, फेडेड ब्लू कलर। 100 वांडा वुड से। अब वो वांडा उसका रिप्लाई देती है बहुत ही अच्छे से, और वो कहती है 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब जब वो आगे से कहती है कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास इन द क्लोजेट, तो अब सारी जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत हैरान हो जाती हैं, एंड अनबिलीविंगली, इनक्रेडुलसली, अनबिलीविंगली, कि उनको विश्वास नहीं होता, इस तरह का वो एक्सप्रेशन देती हैं कि 100। तो एंड जो बाकी की छोटी गर्ल्स जो वहाँ पे हॉपस्कॉच खेल रही होती है, स्टेपू गेम खेल रही होती हैं, तो वो भी वहाँ पे अपना स्टेपू खेलना छोड़ के उनकी इस रिएक्शन को सुन के, कि जैसे बाकी गर्ल्स बोलती हैं कि 100, तो इस बात से वो अट्रैक्ट होती हुई उनकी बातों को सुनने लगती हैं छोटी गर्ल्स भी। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। हाँ 100,
हम मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सब की सब लाइंड अप है मेरी क्लोजेट में। ये आगे कंटिन्यू करती है वांडा। सो देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद वो एकदम चुप हो जाती है, अपने लिप्स को जोड़ लेती है, दैट मीन्स अपना मुंह बंद करके अपने लिप्स को टाइटली जोड़ लेती है और चुप हो जाती है। वॉट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। अब पैगी उसका यहीं पे चुप नहीं होती और उसका मजाक कंटिन्यू करती है अपना। तो वो कहती है कि ऑल सिल्क आई बेट, मुझे लगता है कैसी हैं ये ड्रेसेस, मुझे लगता है कि ये सारी सिल्क की होंगी, ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। अब आगे से वांडा रिप्लाई करती है, हाँ सब सिल्क की हैं और सारे कलर्स में है, वेलवेट टू, और वेलवेट की भी हैं, यस वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस। और आगे से जैसे फिर से पैगी उसको बोलती, पहले उसको पैगी उसे चिढ़ाने के लिए बोलती है, मुझे लगता है सारी सिल्क की होंगी। तो आगे से वांडा रिप्लाई कर देती है, यस ऑल सिल्क और ऑल कलर्स। आगे से कहती है वेलवेट टू। तो पैगी अगेन शी आस्क्ड कि वेलवेट की भी हैं। तो आगे से अगेन रिप्लाई करती है वांडा, ये वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी हैं, 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट, और वांडा इस चीज़ को रिपीट करती है, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस एंड स्टोलिडली मीन्स कोई भी फीलिंग नहीं शो करती, कोई एक्सप्रेशन नहीं देती, नॉर्मली बोलती है, हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास, एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी की सारी मेरी अलमीरा में हैंग की हुई है एक लाइन में। देन दे वुड लेट हर गो, और उसके बाद वो उसको जाने देती, वो सारी जो गर्ल्स उसका मजाक उड़ाने के मोटिव से वहाँ थी उसको जाने देती वांडा को। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और अभी इतना दूर गई नहीं होती वांडा कि दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्राइक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, कि अभी वांडा इतनी दूरी उसने कवर नहीं की होती थी कि वो जो बाकी गर्ल्स हैं अपने आप को रोक नहीं पाती बहुत ऊंची ऊंची हंसने से और चिल्लाने से। तो दैट मीन्स जैसे ही वांडा अपनी बैक करती, थोड़ा सा ही आगे जाती, तो ये सारी गर्ल्स अपनी जो हंसी कंट्रोल करके रखी हुई थी उन्होंने, दे जस्ट बर्स्ट इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, बहुत ऊंचे ऊंचे हंसना शुरू कर देती हैं। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! अब वो आपस में डिस्कस करती हैं कि 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली कि वांडा जो है वो एक ही ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है हर दिन। तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट, कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड? अब किसी और दिन जैसे उसको फिर से वांडा का मजाक बनाने के लिए उसको पूछा जाता कि तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, कितने पेयर्स ऑफ शूज़ हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। अब फिर से उसका रिप्लाई वांडा क्या देती है कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं एंड ऑल दीज आर ऑल्सो लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ये भी एक लाइन में मेरी क्लोजेट में ड्रॉर में, मेरी अलमीरा के ड्रॉर में रखे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike। और सारे आगे से जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ही एग्जैजरेटेड पोलाइट वे से बोलती हैं, अपनी पोलाइटनेस को एग्जैजरेट करके, मतलब बढ़ा चढ़ाकर ये उसकी इस आंसर को वेलकम करती हैं और आगे से बोलती हैं कि ऑल अलाइक, क्या सारे के सारे एक जैसे हैं? ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। और वांडा आगे से कहती है, नहीं नहीं, सारे के सारे जो पेयर्स हैं वो डिफरेंट है, सारे कलर्स के हैं, एंड दीज आर ऑल्सो लाइंड अप, सब एक लाइन में जोड़कर रखे गए हैं। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. अब सारी की सारी गर्ल्स जो उसका मजाक उड़ा रही होती थी, बाकी कुछ तो चली जाती जैसे बीच में छोड़ के, बट पैगी और मैडी ये जो लास्ट होती थी लीव करने वाली उसको, मतलब जब इवन वांडा के जाने के बाद भी ये दोनों वहाँ से, उस प्लेस से जहाँ उसका मजाक उड़ा रही होती थी वहाँ से सबसे लास्ट में वहाँ से जाती थी। Finally Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. अब ये किस टाइम पे उसका मजाक बनाया जा रहा है? अर्ली मॉर्निंग, जब वो स्कूल के रास्ते में है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि रास्ते में कोई एक वे था जहाँ पे एक स्ट्रीट से निकल के जैसे वांडा आती थी तो वहाँ पे एक इंटरसेक्शन पे ये लोग मिलते थे, तो उस टाइम पे उसका मजाक बनाते थे, या फिर आफ्टर स्कूल, और या फिर इन द स्कूल यार्ड इन द रिसेस। सो अब यहाँ पे ये है कि फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट। अब ये स्कूल जाने के बाद यहाँ पे मे बी यस, फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट
हर आइज डल्ड एंड हर माउथ क्लोज्ड। और फाइनली क्या होता है, जब ये मजाक बना रही होती है उसका ये गर्ल्स, तो फाइनली एंड में वांडा जो है वो वहाँ से अपनी स्ट्रीट की तरफ जाती है। हर आइज डल, और उसकी आइज़ बहुत डल होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है अपने इस मजाक के कारण। उसे पता तो चल ही रहा होता है कि उसका मजाक किया जा रहा है उसके साथ। एंड हर माउथ क्लोज, अपने लिप्स को टाइटली क्लोज कर लेती है। एंड हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, और बीच बीच में जैसे उसकी हैबिट थी कि अपने लेफ्ट शोल्डर को डिफरेंट पोजीशन में जर्क करती है वाइल वॉकिंग। एंड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अकेली ही स्कूल की तरफ बढ़ती है और अपना स्कूल पहुंचती है। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पेगी जो एक्चुअल में क्रूअल नहीं थी, एक्चुअल में अनकाइंड नहीं थी। क्रूअल मीन्स अनकाइंड। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। अब वो कैसे पता चलता है कि दैट शी वॉज नॉट क्रूअल? क्योंकि वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। बुलीज आर द पर्सन हु यूज देयर पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। मतलब जिनके पास कुछ पावर होती है, लाइक बड़े स्टूडेंट्स जब छोटे बच्चों को तंग करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज बुलीज। तो उन लोगों से she used it to protect the children also. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. और घंटों तक वो रोती रहती थी, बहुत सैड फील करती थी जब वो किसी एनिमल के साथ मिसट्रीटेड देखती थी कि एनिमल्स के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? और अगर उसे कोई कभी कुछ कह देता इस बारे में कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही क्रूअल बिहेव कर रही हो वांडा के साथ उसका मजाक बना के, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूअल? और वो इस बात पे बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती क्रूअल? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? कि मैं क्रूअल बिहेव कर रही हूँ उसके साथ? कि वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कैन टेल दैट शी वाज एंड दैट वाज अ लाई। हर कोई बता सकता है कि वो झूठ बोलती है। एंड वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? और वो झूठ बोलने की उसे ज़रूरत ही क्या है? एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? और वो एक आम इंसान नहीं है, हम लोगों जैसे अमेरिकन नहीं है। शी इज़ अ पॉलिश गर्ल। एंड और उसका नाम भी तो देखो, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? और उसका नाम भी ऐसा क्यों है, इतना फनी सा? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और जो भी हो, बट हमने उसको, या फिर शी इज़ टेलिंग अबाउट हर सेल्फ, पैगी। पैगी अपने बारे में या अपने साथ जो गर्ल्स हैं उनके साथ मिलके वो कहती है कि उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं है, उसके साथ फन किया है थोड़ा बहुत, बट उसको रुलाया नहीं कभी। सो इस वे में वो कभी भी क्रूअल नहीं है वांडा के साथ। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. और अगर मैडी की बात की जाए तो पैगी जो हर दिन उसको पूछती थी वांडा को कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितनी ये सामान है और कितना वो है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर बॉदरिंग मैडी। इस बात से एंक्शियस हो रही थी मैडी कि ऐसा पैगी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैडी वॉज पुअर हर्सेल्फ। वो क्यों एंक्शियस हो रही थी? क्योंकि मैडी खुद एक पुअर गर्ल थी, बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करती थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंडमेड डाउन क्लोथ्स। और यूजुअली जो मैडी क्लोथ्स पहनती थी, कपड़े पहनती थी, जो उसकी ड्रेसेस होती थी, यूजुअली किसी के द्वारा उसे दी जाती थी। हैंड मी डाउन मीन्स जो अब अपने पुराने कपड़े जो जो किसी ने नहीं पहनने होते तो वो किसी को दे देता है, तो इस तरह के वो कपड़े पहनती थी मैडी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन द बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। अब वो भगवान का शुक्र करती है मैडी कि शुक्र है या अच्छा है कि वो बॉगिन्स हाइट्स पे नहीं रहती, जैसे कि वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ लिविंग ऑन बॉगिन्स हाइट्स, और उसका नाम भी वैसा नहीं है, वांडा पेट्रॉन्स्की जैसा फ़नी नेम नहीं है। नहीं तो क्या होता कि पैगी वांडा की बजाय मैडी का भी मजाक उड़ाती। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, अब mocking क्या है? मजाक उड़ाने का मकसद, कि जो जानबूझकर किसी के साथ फन करने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज़ को चेंज करना। So Maddie felt embarrassed and started the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. और कभी कभी क्या होता है, जब पैगी उसको वांडा का मजाक उड़ाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वॉइस में उसको बुलाती, और तो मैडी को बहुत ही ज़्यादा, और साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस करती कि लाइक कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, एंड सो ऑन। तो मैडी को अच्छा नहीं लगता। शी फेल्ट एम्बेरस्ड, उसको बहुत ही शेमफुल सा लगता, उसको बहुत एम्बेरस सी फीलिंग आती।
और वो क्या करती, उसका पैगी का साथ नहीं देती और स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और जो अपने हाथ में उसने कुछ कंचे या मार्बल के पीसीस जो रखे होते उन्हीं की तरफ देखती रहती एंड रोलिंग देम अराउंड, और उनको अपने हाथ में इधर उधर घुमाती रहती और सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और साथ में खुद उसको कॉपरेट नहीं करती पैगी को वांडा का मजाक उड़ाने में, मतलब वो खुद उसको कुछ भी नहीं कहती वांडा को। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बुरा फील कर रही थी वांडा के लिए। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. और she is also saying कि she would never have paid any attention. अगर वो ऐसा भी कह रही है मैडी कि उसने तो कभी पैगी की तरफ वांडा की तरफ ध्यान ही नहीं देना था अगर पैगी ने ये गेम इन्वेंट ना की होती। कौन सी गेम? कि ड्रेस गेम, लाइक कि कितनी ड्रेसेस हैं वांडा के पास, कितने शूज़ हैं एंड सो ऑन, उसका मजाक उड़ाने के लिए या फिर उसकी एक ही ड्रेस को रोज़ देखते हुए उसके साथ फन क्रिएट करने के लिए। बट सपोज पेगी एंड ऑल others started in on her next, बट सोचो कि अगर पैगी और बाकी की सारी गर्ल्स नेक्स्ट जो है टारगेट अपना मैडी को रखें कि एंड अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, मतलब अब वो मैडी जो है उस सिचुएशन को सोच रही है कि नेक्स्ट हो सकता है कभी, अगर ऐसा कैसा होता अगर उसका नेक्स्ट टारगेट जो पैगी का वो मैडी होती। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, क्योंकि अब चाहे वो जो मैडी है वो उतनी पुअर नहीं है जितनी वांडा गरीब है, पर एज शी वॉज पुअर, बट फिर भी वो पुअर तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। अब अगर ऐसी बात होती तो ऑफ कोर्स शी इज सेइंग मैडी सोच रही है कि वो ऐसा नहीं कहती। अगर उसको कुछ पूछा जाता कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है तो ऑफ कोर्स वो ऐसा जवाब नहीं देती, कुछ और कहती, रादर सेइंग कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो ऐसा ना कह के कुछ और आंसर देती। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, बट फिर भी वो कभी नहीं चाहती कि वो बाकी जो गर्ल्स हैं उसके साथ मजाक उड़ाएं, उसके साथ ऐसा कुछ भी मजाक करें या फन करें। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की, अब वो सोच रही है कि काश जो पेगी है वो वांडा पेट्रॉन्स्की का मजाक उड़ाना बंद करे, उसको टॉर्चर करना अपनी इन बातों के साथ और उसको टीज करना बंद करे। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. अब वेंसडे की बात हो रही थी, तो आज चाहे वो लेट हो गई थी स्कूल से, तो मैडी सोच रही है, मैडी बहुत खुश है। अब वो क्यों खुश है, चाहे वो लेट भी हो गई है स्कूल से, और वो खुश इसलिए है क्योंकि आज वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि इंटरनली शी वॉज नॉट फीलिंग गुड व्हेन पेगी यूज्ड टू मेक फन ऑफ वांडा। सो शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। अब वांडा आज नहीं आई थी वेंसडे, सो मैडी सोच रही है कि वो वांडा का मजाक तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैडी खुश है। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स और एब्सेंट माइंडेडली, बट फिर भी उसका ध्यान जो है इस तरफ एब्सेंट माइंडेडली, यहाँ पे वी कैन से कि शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, और वो अपना मैथ्स का काम कर रही है इनअटेंटिव वे से, कि वांडा की तरफ ध्यान नहीं है उसका। 8 times 8, लेट्स सी now it is the statement or the question or equation whatever is there in her mathematics subject. She wished she had the nerve to write Peggy a note. अब she wished to write a Peggy a note. had the nerve मतलब वो फील कर रही है, इस नीड को फील कर रही है कि उसे पैगी को कुछ नोट लिखना चाहिए। उस नोट में क्या लिखना चाहिए? Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say. अब क्योंकि मैडी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी के साथ डायरेक्टली बात करके उसको कुछ कह सके। ऑफ कोर्स मे बी उसने कुछ वांडा के बारे में ही कुछ कहना है, तो शी जस्ट फील्स कि उसको कुछ लिख के वो पैगी को देना चाहती है। अब वो क्या देना चाहती है लिख के, लेट्स सी, टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। अब वो ये लिख के देना चाह रही है कि पेग इसको छोड़ दो अब, कि वांडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, कितनी हैट्स हैं, ये सब उसके साथ ये जो गेम तुमने इन्वेंट की है इस गेम को क्विट कर दो, छोड़ दो। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. अब जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया, मैडी ने अपना अर्थमेटिक काम कंप्लीट कर लिया मैथमेटिक्स का, तो उसने नोट लिखना शुरू किया।
सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। अब अचानक से जब वो लिखते लिखते उसने उस चीज़ को छोड़ दिया, नोट लिखना छोड़ दिया, और अचानक से बहुत डर गई। डर के वो कांप गई। शडर्ड विद फियर होता है जैसे कि डर के कारण वो कांप गई। अब वो किस वजह से कांपी? शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। अब उस दिमाग में उसके अचानक से ये इमेजिनेशन आ गई कि शायद उसका नेक्स्ट टारगेट वांडा के बाद वो मैडी खुद ही हो। कि अगर वो मान लो कि वो वांडा के लिए मना कर रही है उसको मजाक करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि वो वांडा को छोड़ के मैडी का फन क्रिएट करना शुरू कर दे। तो शी पिक्चर्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को इमेजिन किया कि वो स्कूल यार्ड में खड़ी है अकेली, और पैगी और बाकी की जो गर्ल्स हैं उसके साथ फन कर रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। पैगी माइट आस्क हर where she got the dress she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with the new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it. अब वो ये भी इमेजिन कर रही है कि शायद पैगी वहाँ पे खड़ी उसको ये पूछ ले कि जो तुमने ड्रेस पहनी है कि वो कहाँ से आई तुम्हारे पास, कि तुमने कहाँ से ली है। तो ऐसा ना हो कि मैडी को वहाँ पे खड़े होके ये आंसर देना पड़े कि ये पैगी की ही कोई एक ओल्ड वन ड्रेस है, जो वॉर्न आउट ड्रेस है पैगी की ही, जो उसकी जो मैडी की मदर ने उसको चेंज करने के लिए, उसको छिपाने के लिए, कि रूम 13 में किसी भी स्टूडेंट को ये ना पता लगे कि पैगी की ड्रेस है, इसीलिए उस पर कुछ ट्रिमिंग्स लगा दी हैं, कुछ रिबन्स और कुछ लेसेस लगा दी हैं, सो दैट नो वन कुड रिकॉग्नाइज कि ये पैगी की ओल्ड ड्रेस है। तो अपने आप को इस तरह से वो इमेजिन करती है और एकदम से डर जाती है कि मैडी के साथ कुछ ऐसा, मैडी जैसे सोच रही है कि उसके साथ ही कुछ ऐसा ना हो जाए नेक्स्ट टू वांडा। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, सो नाउ शी इज़ विशिंग कि काश ऐसा ही हो जाए कि पैगी जो है अपने आप ही वो अपनी इस विश को ये अपने आप ही डिसाइड कर ले कि जो वो वांडा के साथ फन कर रही है उसको वो अपनी उस विश को छोड़ दे। दैट मीन्स शी इज़ जस्ट विशिंग कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे और ऐसा कुछ अपने आप ही उसके दिमाग में आ जाए कि रादर उसको कुछ नोट लिख के उसको गाइड करना पड़े या कुछ सजेस्ट करना पड़े, ऐसा कुछ भी ना हो। रादर वो पैगी के दिमाग में अपने आप ही ऐसी फीलिंग आ जाए कि वो वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब जो uncomfortable feeling मैडी के दिमाग में आ रही थी कि वो अपने आप को वहाँ पे स्कूल यार्ड में इमेजिन कर रही थी एज अ नेक्स्ट टारगेट फॉर पेगी, तो वो अपने इस थॉट को ऐसा मानो कि वो अपने जो हाथ है अपने से अपने बालों में अपने बालों में मारती है, तो लाइक अपने हाथों से अपने बालों को सहलाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे अनकंफर्टेबल थॉट्स को पुश कर रही है, अपने अनकंफर्टेबल थॉट्स जो उसके दिमाग में आ रहे हैं उनको भी साइड बाय साइड अपने हाथों के साथ उन बालों से निकाल रही है, अपने दिमाग से निकाल रही है। एंड शी इज़ हैविंग शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड मीन्स गोल्डन कलर के हेयर है मैडी के। What difference did it make? Slowly Maddie tore it into pieces. The note tore into bits the note she had started. अब वो कह रही है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस चीज़ को जैसे अपने दिमाग से उसने निकाल दिया, अपने आप को एज ए टारगेट जो फील कर रही थी उस चीज़ को, उस थॉट को उसने अपने दिमाग से निकाल दिया और कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर पैगी जो है वांडा का मजाक उड़ा रही है तो फिर स्लोली मैडी जो नोट लिख रही थी पैगी को, उसने उसको पीसीज में टीयर कर दिया, फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड। नाउ शी इज़ थिंकिंग कि वो पैगी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पैगी सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली गर्ल है, मतलब हर कोई पैगी को लाइक करता है उनके रूम में। पैगी couldn't possibly do anything that was really wrong, she thought. अब वो सोचती है कि पैगी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। As for Wanda, she was just some girl who lived up on the Boggins height and stood alone in the schoolyard. और अगर वांडा की बात की जाए तो वो एक नॉर्मल सी गर्ल थी जो कि बॉगिन्स हाइट पे रहती थी एंड हमेशा स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और कभी भी किसी के साथ मुश्किल से ही कभी किसी के साथ वो बात करती थी, मतलब वो शी हार्डली टॉक्ड टू एनीवन। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses, और सिर्फ जब वो बात करती थी तो सिर्फ
यही बोलती थी जब भी उसकी कोई बात होती थी या उसके साथ कोई बात की जाती थी तो शी जस्ट यूज टू रिप्लाई अबाउट 100 ड्रेसेस, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में ही रिप्लाई करती थी. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. अब मैडी अचानक से याद करती है कि वांडा की बातों को जब वो बता रही होती थी कि उसके पास एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस है, येलो ब्लूइश कलर की ड्रेस है विद कलर ट्रिमिंग, जिसके ऊपर कलर्ड ट्रिमिंग्स हैं, कलर्ड फ्रिल लगी हुई है. एंड शी ऑल्सो यूज टू रिमेंबर अबाउट द ब्रिलियंट जंगल ग्रीन ड्रेस. अब वो एक और ड्रेस के बारे में भी याद करती है जो कि वांडा बताया करती थी, दैट इज़ ऑफ जंगल ग्रीन कलर, और जिसके ऊपर बहुत अच्छा सा रेड कलर का सैश लगा हुआ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. So you would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. और जिसके रिप्लाई में जो गर्ल्स होती थी जो उसका मजाक उड़ा रही होती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ के, तो जब वो वांडा अपनी ग्रीन ड्रेस के बारे में और विद अ सैश जो इस ड्रेस और के बारे में बताती थी तो बाकी गर्ल्स उसको ऐसे कहती थी, फिर तो तुम उस ड्रेस को पहन के क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी. तो वो जो कि उनका प्रिटेंडेड एडमायरेशन होती थी, मतलब वो जानबूझ के ऐसा शो करती थी कि वो उसकी प्रेज कर रही हैं, बट एक्चुअल में उसका फन कर रही होती थी, उसका मजाक उड़ा रही होती थी. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब स्कूल में कुछ कलरिंग कॉन्टेस्ट या ड्राइंग कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ है, तो जब वो वांडा की सोच के बारे में, वांडा की ड्रेसेस जो वो एक्सप्लेन किया करती थी उसके बारे में जब मैडी सोच रही है तो उसको वो शी ऑल्सो बिगेन टू वॉन्डर, उसको ये भी सोच के हैरानी हो रही है कि अगर इतने आइडियाज़ हैं उसके पास, वांडा के पास ड्रेसेस के, तो हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट की, और जो क्लास में होने वाला जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतने वाला है, कौन जीतेगा, वो पैगी या वांडा. For girls, this contest consisted of the designing dresses and for boys of designing motorboats. अब ये जो contest था उसमें girls को dresses डिज़ाइन करनी थी और boys को motorboats डिज़ाइन करनी थी. Probably Peggy would win the girls medal. अब now she is thinking, मैडी सोच रही है कि of course girls में जो winner रहेगी girls का medal तो Peggy को ही मिलेगा. Peggy drew better than anyone else in the room, क्योंकि जो Peggy है उसकी drawing बहुत ही अच्छी है, क्लास में किसी और गर्ल की ऐसी ड्राइंग नहीं थी. एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और कम से कम हर कोई ही यही सोच रहा था कि पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. वो इतनी अच्छी थी ड्राइंग में और कि वो किसी भी मैगजीन में किसी भी पिक्चर को कॉपी कर सकती थी. एंड ऑल्सो शी कुड ड्रॉ द हेड ऑफ एनी फिल्म स्टार, किसी भी फिल्म स्टार की फेस को भी वो कॉपी कर सकती थी, ड्रॉ कर सकती थी, और हर कोई भी बता सकता था कि ये किसका फेस है. मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, कि इसलिए मैडी जो थी वो बहुत ही श्योर थी कि पैगी इज गोइंग टू विन द कॉन्टेस्ट. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. सो टुमारो, अब वो कॉन्टेस्ट हो चुका है, तो कल जो है नेक्स्ट डे जो आने वाला है टीचर उसमें अनाउंस करेगी कि विनर कौन है. देन दे वुड नो, और फिर उसके बाद उनको पता लगेगा कि कौन विनर है. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, और नेक्स्ट डे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और पैगी की अम्ब्रेला के नीचे वो मैडी और पैगी दोनों ही स्कूल जा रही थी. बहुत जल्दी जल्दी से, हरिडली मतलब तेजी तेजी से वो स्कूल जा रही थी. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. अब ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो ऐसा दिन है बारिश वाले दिन, तो वो वहाँ पे खड़ी होकर किसी की वेट करेंगे ही नहीं थे. सो नेचुरली इस तरह के दिन उन्होंने वांडा पेट्रोंस्की की कॉर्नर पे, ऑलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े होकर वेट नहीं की कि कब वो आए और कब उसका मजाक बनाया जाए. सो वो जो ऑलिवर स्ट्रीट थी वो अगर दूर दूर तक देखा जाए तो वो बहुत आगे से जाके रेल रोड ट्रैक से होती हुई अप साइड द हिल जाती थी. एक हिल के ऊपर को जाती थी वो रोड, जो कि बॉगिन्स हाइट नेम एरिया जहाँ पे पड़ता था.
Anyway, they were not taking chances of being late today. और anyways अब वो लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इसके पहले दिन भी वेंसडे को भी वो बहुत लेट हो चुकी थी. सो नाउ मे बी इट इज़ द नेक्स्ट डे, इट इज़ थर्सडे. सो आज भी वो लेट नहीं होना चाहती थी बिकॉज टुडे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्यों लेट नहीं होना चाहती थी? क्योंकि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. और क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि आज विनर्स अनाउंस होने वाले थे कि कौन ड्राइंग का विनर है. डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आज पेगी. तो पेगी ने पूछा मैडी को कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेसन इज क्लास टीचर, कि जो मिस मेसन है वो आज विनर्स का नेम अनाउंस करेंगी. ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. अब मैडी कहती है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि आज विनर्स अनाउंस हो ही जाएंगे. और जैसे ही हम एंटर करेंगे क्लास में तो मैम जो है, हम मैम जो क्लास टीचर है वो अनाउंस करेंगी विनर्स कौन है. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. अब नाउ शी इज टेलिंग पैगी कि ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी. होप सो, सेड पैगी ईगरली. और पैगी एक्साइटेडली बोलती है होप सो, काश मैं ही जीतूं. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. अब वो जैसे ही क्लास में एंटर करती हैं ये दोनों, मैडी और पैगी, तो क्या देखती हैं, कुछ ऐसा दिखता है उनको जिससे वो उनकी जो ब्रीदिंग है बहुत ही शॉर्ट और क्विक हो जाती है, जैसे कोई हाँफता है किसी सरप्राइज की वजह से, कि और ऐसा कुछ उनका हो जाता है कि मुंह खुला रह जाता है. एंड दे यूज टू टेक ब्रीथ फ्रॉम माउथ. तो ऐसा कुछ हैरानी वाला सा उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है. एंड there were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. What was the reason of their gasping and short breathing? अब वो रीज़न ये था कि जैसे ही ये क्लास में एंटर करती हैं तो देखती हैं कि सारे के सारे रूम में हर एक लेज पे, लेज क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है जो वॉल के साथ कनेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड होता है. और विंडो सिल मतलब विंडो के नीचे की जो वॉल होती है दैट इज़ नॉन एज विंडो सिल, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो विंडो के पास बड़ा होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज विंडो सिल. दैट इज़ ऑल. सो हियर वहाँ पे ये कह रही हैं कि हर एक जगह पे चाहे वो लेज है या विंडो सिल है, तो वहाँ पे पेंटिंग्स लटक रही थी. वर ऑल एंड दीज वर ऑल ऑफ डेजलिंग कलर्स, बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही शाइनी कलर्स, लेविश डिज़ाइंस, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की ड्रेसेस थी, डिज़ाइंस की ड्राइंग्स थी ये. एंड ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. और ये रैपिंग पेपर पे ड्रॉ की हुई थी. ये जो सारी की सारी ड्राइंग्स थी वो सारे के सारे रूम में वहाँ पे हैंग की हुई थी. रैपिंग पेपर इज़ अ हैंडमेड शीट, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड शीट्स होती हैं, दैट इज़ नॉन एज रैपिंग पेपर. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज गिफ्ट पेपर. जो बट वो गिफ्ट पेपर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो पतला होता है, बट दीज आर वी कैन से इट इज़ कवरिंग पेपर, कि कवर करते हैं हम जिस शीट से अपनी बुक्स, नोटबुक्स को. कुछ डेकोरेटिव पेपर्स जो होते हैं दैट इज़ नॉन एज रैपिंग पेपर. तो ये उस तरह के पेपर्स के ऊपर ये जो ड्राइंग्स थी वो ड्रॉ की हुई थी. डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, कलर्स इनके बहुत अच्छे थे. एंड दीज वर स्प्रेड ऑल ओवर द रूम. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप. और ये सारी की सारी ऑलमोस्ट 100 होंगी, जैसा कि उनके दिमाग में वो चीज़ आ गई वांडा पेट्रॉन्स्की की. उसने जैसे बोला था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और एंड ऑल दीज आर लाइंड अप. सो दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट. अब पैगी और मैडी सोच रही हैं कि ऑफकोर्स ये जो ड्राइंग्स हैं ये डेफिनेटली कॉन्टेस्ट के लिए ही होंगी, ड्राइंग कॉन्टेस्ट. और कलरिंग कॉन्टेस्ट दिया था मैम ने, टीचर ने, तो ऑब्वियसली ये उसी कॉन्टेस्ट के रिलेटेड होंगी. They were, and of course they were. Obviously, these were the drawings for the contest only. Everybody stopped and whistled and or murmured admiringly. और हर कोई आपस में धीरे धीरे बातें कर रहा था, प्रेज कर रहा था उन ड्राइंग्स की, और विस्लिंग कर रहा था. मतलब हर कोई विसल, जैसे बॉयज़ विसल कर रहे थे इतनी अच्छी ड्राइंग्स को देख के. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. और जैसे ही सारी क्लास इकट्ठी होगी, सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो मिस मेसन ने अनाउंस किया कि विनर कौन है. जैक बेगल्स had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. अब जैसे कि बॉयज़ को आउटबोर्ड डिज़ाइन करना था,
आउटबोर्ड मोटर की डिज़ाइनिंग करनी थी और गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी। तो जैसे ही क्लास के में सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो विनर्स अनाउंस होते हैं, जिसमें कि जैक बेगल्स जो कि बॉय है जिसने वन किया, जो आउटबोर्ड मोटर का जो जिसने डिज़ाइन किया उसको विनर अनाउंस किया गया, जैक बेगल्स को। आउटबोर्ड मोटर होती है जो मोटर propulsion सिस्टम होता है एक, जो कि ये जो बोट्स होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। सो टीचर ने कहा कि ये जो डिज़ाइन है आउटबोर्ड मोटर का जो जैक बेगल्स ने बनाया है, इट इज़ ऑन द एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12 विद अदर स्केचेस, जो कि बाकी सब बॉयज़ ने बनाए हैं। उन सब के स्केचेस के साथ ये जो विनर का डिज़ाइन है वो भी रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन पे डिस्प्ले किया गया है। As for the girl, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs and all different and all beautiful. और अब जब गर्ल्स की बात की जाए, पहले बॉयज़ का क्लियर कर दिया टीचर ने, तो कि जैक बेगल्स विनर है और उसकी जो ड्राइंग है रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन पे है। और अब गर्ल्स की बात की जाए तो शी सेड, ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेस, कि बहुत सारी जो गर्ल्स थी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे सबमिटेड ओनली वन और टू स्केचेस ऑफ ड्राइंग, कि सिर्फ एक या दो ड्राइंग्स ही उन्होंने सबमिट की, पर एक गर्ल ऐसी है जिसपे सब रूम नंबर 13 के सारे स्टूडेंट्स को प्राउड फील होना चाहिए, एंड दैट गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, और इस गर्ल ने एक्चुअल में 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किए, एंड दीज ऑल आर डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, बहुत ही डिफरेंट है सब, और सब के सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ द विनिंग ऑफ द प्राइज़। और जो जजेस हैं, जो जजेस डिसाइड किए गए थे इस कॉन्टेस्ट के लिए, कंपटीशन के लिए, तो उन जजेस का कहना है कि इनमें से कोई भी ड्राइंग, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स, मतलब इन 100 ड्राइंग्स में से कोई भी जो ड्राइंग है वो प्राइज़ विन करने के लिए वर्दी है। मतलब किसी भी ड्राइंग को अगर देखा जाए कि वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी डिफरेंट है कि उसको किसी भी ड्राइंग को अगर देख लें तो वो भी प्राइज़ विनिंग के लिए एबल है, वर्दी है। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal. Now, Miss Mason is feeling very proud and happy to say कि Wanda Petronsky girls के medal की winner है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. अब अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली कि वांडा बहुत दिन से स्कूल से एब्सेंट चल रही थी, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिनों की बात हुई। इवन देन शी हैड नॉट कम टू स्कूल, तो शी वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर अ फ्यू डेज। तो मिस मेजन इज सेइंग कि शी इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। अब उस अप्लॉज को वो रिसीव करने के लिए, उस प्रेज़ को जो उसके लिए उसकी ड्राइंग्स के कारण यहाँ पे हो रही है, उस प्रेज़ को वो रिसीव करने के लिए यहाँ पे नहीं है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और वी होप कि वो कल स्कूल ज़रूर आएगी। एंड नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। अब वो टीचर जो है वो क्लास में बाकी स्टूडेंट्स को बोल रही है कि यू मे फाइल अराउंड, कि आप क्लास में घूम सकते हैं चुपचाप से, एंड लुक एट द एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। और जो ड्राइंग्स वांडा पेट्रॉन्स्की ने बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइनिंग जो उसने की है, you can enjoy those drawings. You can have a look at those and you can also enjoy those drawings, and you can also have an idea also. तो उसको प्रेज करने के लिए, उसकी ड्राइंग्स को बहुत अच्छे से देखने के लिए, you can just move around the room. तुम रूम में घूम सकते हो without making any noise. The children burst into applause. Applause means sudden and spontaneously clapped. अब जैसे ही विनर का नेम अनाउंस हुआ और बच्चों को ये बोला गया कि आप क्लास में उसकी जो ड्राइंग्स है उस पर एक लुक दे सकते हो, एक नज़र दे सकते हो, उसको देख सकते हो एग्जीबिशन को। सो एकदम से सारे बच्चों ने क्लैप करना शुरू किया। इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बॉयज़ भी बहुत खुशी से अपनी फ्लोर के ऊपर स्टैम्पिंग करने लगे अपने पैरों के साथ। पुट देयर फिंगर्स इन द माउथ एंड विसल, और अपने मुंह में उंगली डाल के विजलिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेज, अब चाहे वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बट फिर भी दे शोड देयर हैप्पीनेस एट द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स नेम, कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो विनर अनाउंस हुई है। Look, Peg whispered,
लुक पैग विस्पर्ड मैडी। अब मैडी ने बहुत धीरे से पैगी को बोला कि लुक पैग, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, कि वहाँ पे ये देखो कि ये जो ब्लू कलर की ड्रेस है वो वहाँ पे हैंग की हुई है, जिसके बारे में हमें वांडा पेट्रोन्स्की बताया करती थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, कि ये सुंदर है ना? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और फिर उसने ग्रीन कलर की ड्रेस को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ये वो देखो वो ग्रीन वन की ग्रीन वाली ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था। बाय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और अब वो सोच रही है कि काश मैं भी इस चीज़ को, इस ऐसी ड्रेसेस को ड्रॉ कर सकूँ, कि जस्ट शी इज़ ऑल्सो टेकिंग एन आइडिया कि मैं भी इसको ड्रॉ करूँ, कि या मैंने भी इसको ड्रॉ किया होता। सो शी इज़ थिंकिंग like this. So with this our chapter comes to an end. It is a little bit lengthy, but you must read it or listen to it very carefully, and I hope you have well understood it, as it is very easy. Nothing problematic is there, no problematic thing is there, no trouble is there. So listen to it very carefully and understand the story, and also understand the feelings of Wanda as well as Peggy. एंड ऑल्सो कीप इट इन माइंड कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें, चाहे उसका नेम कुछ फ़नी है या उसकी अपीयरेंस फ़नी है या फिर वो किसी भी कल्चर को बिलोंग करता है कोई पर्सन, बट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ हिम और हर एट ऑल. So with this, our chapter comes to an end. Thank you and have a nice day.